हमो नानकियस्त हमो अंगदियस्त हमो अमृदास सुरजलवंजदियस्त हमो रामदासु हमो अर्चनियस्त हमो हर गोविंदो विक्रमो ऐसनियस्त हमो अस्तु तेग बहादुर गुरु के गोविंद सिंह हमन अजनूरे हमो गुरु गोविंद सिंह हमो नानक अस्त हमो रतन जोहर हमो मानिक अस्त। गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसे मन आवे जिना सास गिरास नाम ईसरै हरे नाम मन मंत तन से नानका पूरन सोई संत। संतन बिन अवर न दाता बिया जो जो शरण परे साधु की सो पार ग्रामी किया। 1429 अंक। धन गुरु तेग बहादुर महाराज गुरु नानक देव 9वें ਸਰੂਪ जिन्हां दी पावन बाणी श्लोक महले 9वें चल रहे सन। अज की लड़ी का ये लास्ट श्लोक है 57 नंबर श्लोक 57। आओ इस श्लोक की विचार सांझी करिए। पूरी बाणी का इस श्लोकां का तत्त निचोड़ है। पूरे श्लोकां का पूरा मीनिंग इस श्लोक दे विच है। इस श्लोक के अंदर गुरु पातशाह ने 4 गल्लां कीतियां ने। पहली गल ये की है, राम नाम उर मैं गयो जम के सम नहीं कोई। राम नाम नू मैं उर मने हिरदे के अंदर पकड़ लिया है। भाव के हिरदे के अंदर राम नाम नू रख लिया है। राम नाम प्रति ये भुलेखा भी दूर हो जाए। जदों गुरबाणी के अंदर राम नाम की गल आती है अदों ये भुलेखा लग सकते कि दशरथ के बेटे श्री राम उन्हां दी गल चल रही है, पर ऐसा नहीं है। जदों राम नाम की गल चलती है अदों व्यापी राम की गल चलती है, जो सर्वव्यापी राम है, जो दशरथ के बेटे श्री रामचंद्र जी तो भी पहले सी राम, जिसनों हर युग दे विच जपिया गया ध्याया गया। श्री राम दे पुजारियां ने राम नाम का जिहड़ा नाम सी ये श्री राम जी नाल खामखा जोड़िया है। राम का नाम श्री राम का नाम नहीं है। राम का नाम श्री राम जी से पहले भी लिया जाता था। रामचंद्र जी अदू पैदा भी नहीं सन, उस वेले भी लोग राम नाम जपते सन, राम का नाम लेंदे सन। वो केड़ा राम सी फिर? वो व्यापी राम जो रमिया हुआ है सारी जगह, उस दे नाम की गल है। हाँ, जो सनातन मत के अंदर राम का नाम कहते हैं अदों राम नाम
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ 'ਚ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਮਲਿਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो राम नाम, राम का नाम ਜਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਚੈਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਨਾਮ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ, ਚੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਯਾਦ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਯਾਦ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ? 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਤੇ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਗ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਭਲਾ? ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸੁੱਚ ਤੋਂ ਬਲਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਉਧਰੋਂ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ।
ਸੇਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਪਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੁਪਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। चिंतन जैसा आ रहा है वैसा चिंतन भेजो, वैसा चिंतन वापस आ जाएगा। टैलीपैथी का नाम इन्हों दिता गया अज के युग विच, पर एक अज की गल नहीं है, बहुत पुरातन गल ये चली आ रही है। इसनों नाम क्या है, बड़ी गहरी बात है, समझना जरा। तुसी किते वेखना, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੜਿੱਕ ਚੀਚੀਆਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਿੰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭੈੜਾ ਚਿੰਤਨ, ਚੰਗਾ ਚਿੰਤਨ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਪਹੁੰਚਦਾ। बस ये होंगे कि जो सुता होंगे उन्होंने नहीं पता चलता कि चिंतन कैसा, चिंतन तो वो अंदर चल रहा, टैलीफोन तो हो रहा। ये कमाल की गल है कि गल भी कर रहे हो, जी अंदरों गल हो रही है ना, किसी को जिते भी बैठा हो, चाहे वो दुश्मन है तो चाहे वो सज्जन है, असी सज्जन नूं ते दुश्मन नूं गल कर रहे हैं, टैलीफोन हो रहा है, पर सानू ये पता नहीं कि टैलीफोन हो रहा है, गुप्त टैलीफोन है जिसकी मैं गल तुहाडे नाल सांझी कर रहा। नोट करना प्यारे इस गल नूं। सेम टाइम सिर कोई दुश्मन है, वो याद आ रहा है, ਉਹਦੀਆਂ बुराइयां याद आ रही ने, ਉਹਦੇ प्रति असी बड़े गुस्से अखां लाल कीतियां ने, दंदियां वट रहे हाँ। सेम यही हालत उत्थे भी होएगी। यह है सिमरन, भैड़ा सिमरन चाहे चंगा सिमरन। चिंतन, चेता, ख्याल शक्ति बहुत जल्दी पहुँचती है, इसकी स्पीड नूं अज तक कोई नाप नहीं सकिया। माइक्रो सैकेंड जिहड़ा है वो सब तो तेज मन्ने, पर मैं कहना माइक्रो सैकेंड तो भी जल्दी पहुँचता चिंतन। इन्ना गहरा चिंतन, पर चिंतन नूं पहचानना ये अंदर का टैलीफोन है, इन्हूं कोई पहचान ले तो फिर बड़ा सौखा काम हो जाता है। ये चिंतन है। हुण इत्थे एक गल समझना, असीं अपने मित्र प्रति की मैसेज भेज रहे हैं, उधरों की आ रहा है तुसीं बैठे बैठे पहचान सकते। तुसीं अपने दोस्त प्रति भी, दुश्मन प्रति भी की मैसेज भेज रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जाएगा। ये कर्ज होर करा जी मैं हुण गल करके अगे चलांगा। तुसीं अपने किसी मित्र की अंदर की गल नूं जानना चाहते हो कि बंदा धोखा तो नहीं करेगा, अगर तुसीं सियाणे हो, तुसीं अपने एक चिंतन भेज के देखो तो वह चिंतन वापस की आता, तुहानूं पता चल जाएगा कि ये बंदा इस जगह पर धोखा कर सकता है, इस जगह पर नहीं कर सकता, पहचान कर सकता। चिंतन नाल इन्ना गहरा चिंतन हुंदा है। ते सब तो वड्डा चिंतन जिहड़े वो रब दा चिंतन है, परमात्मा दा चिंतन है। मैं इस विषय की एक आप जी नाल गल सुना के फिर मैं इस श्लोक को पूरा करने की कोशिश करांगा। एक घटना लिखी है अकबर के जमाने की कि अकबर बादशाह ਜਾਂ कोई होर बादशाह कोई भी हो गए, अकबर दे नाल गल जोड़ी गई है। कहंदी एक जगह तू शिकार लई राजा जाया करदा सी, उत्थे एक झुग्गी सी, बड़े चिरां तो पुरानी झुग्गी सी। ये बादशाह उत्थों जांदा सी,
एक दिन बादशाह ने कहा ये झुग्गी ढा दो, ये मेरे रस्ते च रुकावट है, भैड़ी लगती, मैनू ढा दो। जिहड़ा वजीर सी वो बड़ा सियाणा सी, कहंदा अज राजे नूं की हो गया, ये झुग्गी ढाण नूं फिरदा है, एने चिर इहनूं झुग्गी माड़ी नहीं लगी, अज झुग्गी क्यों माड़ी लगन लग पई। ते जिहड़ा बीरबल सी जां उहदा वजीर सी, वो बड़ा सियाणा सी, राजे दा वजीर। उन्हें कहा भी ये गल आई क्यों राजे के मन च, बुराई आई क्यों। जो किसी प्रति साडे मन च बुराई आवे तो समझना कि ये बुराई किसी ने टैलीफोन तो नहीं की, अंदरों मैसेज तो नहीं भेजे। उन्होंने अच्छी तरह पहचानो, अच्छी तरह पढ़ो, तुहानूं पता चल जाएगा किने भेजे। अगर तुहाडा इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पता चलता सब इत्थे ही सब कुछ रखे रब ने। वजीर ने कि अच्छा राजन ये झुग्गी ढा देंगे, तुसी चिंता ना करो, 2-4 दिन सानू दिओ, असीं झुग्गी ढा देंगे। वजीर ना एक दिन उस गरीब आदमी को चला गया, झुग्गी वाले को, कहंदा भी ये तो तेरी झुग्गी झोंपड़ी है, ढा देनी है राजे ने। वो कहंदा जी मैं तो गरीब आदमी है, मैं किधर जावांगा। वजीर कहंदा तू एक गल मैनू दस, तू राजे के खिलाफ तो नहीं कुछ किया। वो कहंदा मैं मरने, बादशाह मरवा देगा, बादशाह के खिलाफ मैं किवें कह सकता कुछ। कहंदा अच्छा एक गल होर दस, तू किते मन विच भी बादशाह के खिलाफ कुछ सोचिया होवे? ओपन ते चलो नहीं कुछ कर सकता, एक अंदर दी लड़ाई हुंदी है, एक अंदर दी मित्रता हुंदी है। असीं किसी नूं जाणदे आ नहीं जाणदे आ, उहदी शक्ल सूरत देख के अंदरों दुश्मनी जां अंदरों मित्रता पैदा हो जाती। एक बहुत गहरी बात है। कई बार असीं किसी नूं जाणदे नहीं, पर असीं उहदी शक्ल सूरत देख के असीं उहनूं नैगेटिव थॉट्स भेजने शुरू कर देंगे, वो भी सानूं भेजना शुरू कर देंदा। और असीं कई बारी आपस विच दूसरे मित्र नाल जां किसी नाल गल कर भी देने, यह बंदा मैनूं नहीं चंगा लगदा, असीं उहनूं कदी मिले नहीं, पर असीं कह देंगे मैनूं नहीं अच्छा लगदा। कई बारी असीं किसी नूं मिले नहीं होंदे, कहने मैनूं बहुत अच्छा लगदा। ये कुछ अंदर दे संदेशे हैं जिहड़े असीं भेजदे हां, चिंतन चेता। वजीर ने कहा कि तू कोई राजे के खिलाफ तो नहीं कुछ किया। उन्हें कहा मैं तो अज तक कुछ नहीं किया। हाँ एक गल जरूर है वजीर, अगर तू किसी को ना दसे तो मैं तेन दस देना। कहते इस तरह कि मैं लकड़ जंगल चो लिया के मसा गुजारा करना, मैनू कोई चंदन की लकड़ मिली है। हुण चंदन की लकड़ विकदी नहीं, बड़ी महंगी है, कौन लवे, किसी के काम की नहीं। तो चंदन की लकड़ जिहड़ी है राजे के मरण के उत्ते उहदी लोड़ पैंदी है। तो मैं एक अरदास जरूर कर रहा कि हे रब जी, राजा किते मर जाए तो मेरी लकड़ विक जाए तो राजे का संस्कार हो जाएगा इस लकड़ के नाल। कहता तू अपनी लकड़ पिछे राजे की भी जान लेना चाहने। उन्हें कहा जी बस जो भी है मैं तुहानूं दस दिता। उन्हें कहा तेरी लकड़ किन्ने दी है? जिन्ने दी लकड़ सी वजीर ने ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ खरीद ਲਈ। ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, अपनी ड्यूटी भुगतान गया, तो बादशाह ने कहा वजीर वो झोंपड़ी ढाई तो नहीं? कहता मैं झोंपड़ी नहीं ढाई। कहता हूँ ढाई भी ना, गरीब आदमी कितने जाएगा, मारिया जाएगा। वजीर ने बड़ा भारी एक्सपैरीमेंट किया। कहता कमाल की गल है, एक पासों नैगेटिव थॉट आ रहे हैं तो राजा भी नैगेटिव होया पिया। जदों मैं ये को चंदन खरीद लिया, यदा भार हल्का हो गया, ये वो बारे अच्छा सोचन लग पिया, वो भी अगों अच्छा सोचन लग पिया। उन्हें फिर इस दे उत्ते राजे दी ते उस गरीब झोंपड़ी वाले दी कहानी लिखी है कि अंदरों किवें लड़ते रहे और कई दिन उन्होंने लड़ाई चलती रही अंदर खाते। आखिर राजे को शक्तिशाली राज सी, वो लड़ाई बाहर भी शुरू हो गई। बाहर भी उन्हें कह दिता कि इसकी झोंपड़ी ढा दो।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਥੋਟ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਥੋਟ ਕੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਕ-ਬਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਡਿਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਭੇਜੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਿਆਲ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਿਮਰਤੀ, ਯਾਦ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਚਿੰਤਨ। ਚਿੰਤਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੁਕਾਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਆਖਰ ਕੁਝ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੰਤਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਚਿੰਤਨ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਹੈ ਪੁਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਪੁਕਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ। ਇਹਦੇ 3 ਰੂਪ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਜੀਓ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਪ ਪੁਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲਗਨ। ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੰਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਾਜਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜਾ, ਜੋਗੀਆਂ 'ਚ ਜੋਗੀ, ਭੋਗੀਆਂ 'ਚ ਭੋਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ, ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ, ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਨ ਹੈ ਯਾਦ। ਤੇ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਈਏ,
परमात्मा के गुण इकट्ठे करिए। ये है राम नाम हिरदे च रखना। राम नाम उर मैं गयो, जाके समनी कोय। दूसरी गल कही है गुरु पातशाह ने, जिस दे बराबर और कुछ नहीं है। राम नाम में हिरदे च रखे, इस राम नाम दे बराबर कोई चीज नहीं है। कोई पुन दान जप तप कोई इस दी बराबरी नहीं करता, सब तो उत्तम है। तीसरी गल कही है, जह सिमरत संकट मिटाए। जिस दी सिमरती दे नाल, याद दे नाल संकट मिटदा है, जीवन दा कलेश मिटदा है। तुसी किते हुणे ही याद करो, देखो अंदर कलेश चल रहा ना, खत्म हो जाएगा, नालों नाल ही खत्म हो जाएगा कलेश। ते जे उस दी सिमरती दे नाल, उस दी याद नाल ओनू पुकार करिए, अपना चिंतन उहदे तक भेजीए, ते साडा कलेश मिट जाता है, संकट मिट जाता है। ते जदों असीं भुल जाने आ, अदों सानूं तकलीफ हुंदी है। जिन्नियां सानूं तकलीफां ने उहनूं भुल्लण नाल, जिन्ने सानूं सुख ने उहनूं याद करन नाल, ते उहनूं याद रखिए। इस तो वड्डा कोई काम ही नहीं हैगा। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ कि मैं उन्होंने याद करना, मैं उन्होंने याद कर रहा हाँ। अपने आप ਨੂੰ पढ़ना है कि मैं उन्होंने याद कर रहा या नहीं कर रहा, स्वयं ਨੂੰ याद कराना और स्वयं ਦੀ याद ਨੂੰ पकड़ना, ये याद चल रही है, पुकार रहा हाँ मैं। जह सिमरत संकट मिटे, संकट मिटदा है, विघनां दा विनाश हुंदा है। जीवन दे विच विघन नहीं लगदे, ना मन दे तल ते, ना तन दे तल ते, ना आत्मा दे तल ते, तिन्ने विघन जिहड़े हन नहीं लगदे, संकट मिटदे हन। ते दरस तुहारो होए, नाले परमात्मा तेरा दर्शन हुंदा है। तो सारियां ही खूबियां ने, नाले जीवन दे संकट मिटदे ने, ते नाले परमात्मा तेरा दर्शन हुंदा है। ऐसा है तेरा नाम, हे व्यापी राम, तेरे नाम च इतनी शक्ति है। हुण आपां नाम दी सांझ कीती कि नाम की है, नाम की है पूरा तो कोई भी नहीं दस पांदा, पर ये चिंतन जिहड़ा है, इनू मेन गल फड़ना, चिंतन ते चिंतन नू पूरा करने वास्ते पूरा ईमानदार होना पेगा। मान लो एक बंदा सानू पुकार रहा है झूठी मूठी, तो जो कोई झूठी मूठी रब नू पुकारदा ते उहनू भी पता था बेईमान है, स्वार्थी, सैल्फिश है। चिंतन दे विच पूरी ईमानदारी होवे तो चिंतन पहुंचता है, वैसे ईमानदारी ना होवे तां भी पहुंचता है, और उहदा भी रिस्पोंस आंदा है। बेईमानी का चिंतन किया जाए, चलाकी दे नाल, शरारत दे नाल, अंदरों जुड़े ना, जुड़ना भी ना चाहता होवे, समर्पित ना होना चाहता होवे, किसी ने किसी मतलब लिए वो कर रहा होवे, तो मतलब भी पूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर अगों वास्ते ब्रेक लग जाती, वड्डा काम नहीं होया, फिर कलेश उदा ही बने रहते हैं। पूरी ईमानदारी के नाल गुणां नूं धारण करके, पूरी वो सोच धारण करके गुरबाणी दी अगर असी चलते हाँ तो असी कामयाब होंदे हां। एक अर्ज होर कर, रहत मर्यादा विच एक बड़ा प्यारा बचन किया गया कि सिख नूं नाम बाणी का अभ्यास करना चाहिए। हुण इहदे च असीं कहांगे नाम बाणी का अभ्यास किवें करना, चलो बाणी का अभ्यास तो करना है, कि बाणी का अभ्यास नाम का अभ्यास नहीं है। बाणी नूं पढ़ना कि बाणी का अभ्यास नहीं है, पढ़ना कोई अभ्यास नहीं है, भी मर्ज कर।
मैं पढ़न की निंदा नहीं कर रहा, अगर पढ़ना ना आवे तो पढ़ना कोई अभ्यास नहीं है। बाणी का अभ्यास की है कि जो भी लाइन मेरे सामने आ रही है, जो भी शब्द मेरे सामने चल रहे हैं, इनू मैं अपने अंदर फिट करने ते किस जगह ते फिट करने, ਇਹਦਾ अभ्यास मैनू करने की लोड़ है। ये तां होएगा ਜਦੋਂ मैं बाणी नू विचार दे नाल पढ़ांगा, ਜਦੋਂ मैं बाणी नू सोच दे नाल पढ़ांगा तो मेरी सोच बाणी वाली हो जाएगी। थिंकिंग जिहड़ी है वो मैनू गुरु शब्द देगा, तो गुरु शब्द की विचार जिहड़ी है वो सोच देंदी है। असल च बिना विचारे जिहड़ा शब्द है ना, ਉਹਦੀ सोच का पता नहीं चलता कि शब्द विच सोच की रखी है महाराज ने, थिंकिंग की है। तो जो वो थिंकिंग साढ़े अंदर आ जाती है तो वो थिंकिंग गुरु शब्द की थिंकिंग जिहड़ी है, जेकर गुरु शब्द की विजडम, गुरु की विजडम जो है ये शब्द का अभ्यास है। हुण चैक करना गुरु की विजडम मेरे को कितनी है। एक तो मेरी अपनी विजडम है ना, बेकार है, वो मैनू दुख देती है। पर एक गुरु की विजडम है, डिवाइन विजडम, जी डिवाइन विजडम है वो मैनू सुखी करती है। वो मेरे को कितनी है, वो गुरु शब्द तो उत्पन्न हुई है। गुरु शब्द डिवाइन विजडम है। ये आएगी जदों कोई गुरबाणी नू विचारेगा। विचार मीनस डिस्कशन। डिस्कशन एक होंदी है कल्लियां जिहड़ी असीं कर रहे हैं, एक होंदी है जदों आपस विच गुरसिख मिलते हैं तो गुरबाणी की गल करते हैं, गुरु शब्द की गल करते हैं। पहला करिया करते सन, इनू कहते हैं अकलदान, अकलदान देना। तो गुरु शब्द की विचार करते सन तां जो गुरु शब्द प्रवेश हो सके। ये तो होया कि गुरु शब्द नू अपने अंदर धारण करना, भाव कि गुरु शब्द की सोच नू अपने अंदर धारण करना, डिवाइन विजडम अपने अंदर फिट कर देनी, यह है शब्द का अभ्यास। जिवें मस्कीन साहब कहते हैं ना, किसी बंदे ने उन्होंने कहा जी मैं एने पाठ सुखमणी साहब दे करदा, वो कहते मस्तक उत्ते ते एक भी लाइन नहीं दिखाई दे रही। तो उसका मतलब ये सी भी सुखमणी साहब का पाठ तो किया, भी सुखमणी की सोच भी तेरे अंदर आई है कि नहीं आई है। सुखमणी खाली विचारना भी काफ़ी नहीं है, पहला पढ़ना, फिर उस पढ़े हुए नू विचारना, ते विचारे हुए नू जगह दे देनी, थां दे देनी, प्रैक्टिकल शेप दे देनी, तां गल बढ़दी। यह है शब्द, शब्द की समझ, इनू कहते बाणी का अभ्यास। दूसरा है नाम का अभ्यास। नाम का अभ्यास गुरमंत्र का अभ्यास। गुरमंत्र नू अंदर टिका के रखना, ते गुरमंत्र नू उस जगह ते ले जाना जिथे गुरमंत्र साइलेंट हो जाता, चुप हो जाता। पहला अखरां च जाएगा, फिर बिना अखरां तो हो जाएगा। पर अजे तो अखरां वाला ही नहीं पूरा हो पा रहा। चलो अखरां वाला पूरा करिए, फिर अपने आप साइलेंट हो जाए, बिना अखर तो हो जाएगा। तो गुरमंत्र का अभ्यास, नाम का अभ्यास, गुरु शब्द की सोच का अभ्यास, बाणी का अभ्यास, ये रहत मर्यादा च दो गल्लां लिखियां ने कि सिख नूं नाम बाणी का अभ्यास रोज करना है। अपना एक सहज पाठ चलता होवे ते वो सहज पाठ का भोग ना पाने की सोचे कि मैं भोग पाना है, भोग पाएगा फिर तो वेला हो जाएगा, फिर भोग ही पाते रह जाएगा। भोग ना पावे, उन्होंने जीवन के विच धारण करे ते गुर मंत्र नाल चले ਉਹਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ दोए चीज़ां चलदियां ने ते नाम बाणी का अभ्यास बनता है। अगर रहत मर्यादा च खाली लिख देंगे बाणी का अभ्यास ਜਾਂ खाली नाम का अभ्यास तो सानू भुलेखा लगता। इसलिए कुछ विचारवान भी कह देंगे ने भी असी बाणी पढ़ रहे हैं कि ये नाम नहीं, वो इदा कह देंगे। असल नाम वो याद है, याद नू नाम क्या है, तो वो याद बनेगी किवें, वो सानू बाणी दसेगी। जदों ये याद बनती है तो संकट मिटते हैं, तो नाले परमात्मा जी का दर्शन हुंदा है,
ऐसा राम नाम। राम नाम उर में गयो, जम के सम नहीं कोए। जय सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहारो होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।